जब मैं साइलेंट होता हूं मेरे अंदर तूफान मचता है। व्हेन आई बिकम साइलेंट, या जब मैं मेडिटेशन में जाता हूं, मैंने बहुत लेट मेडिटेशन शुरू की है, बहुत मतलब 1 साल पहले मैं, बिकॉज मुझे नींद नहीं आती थी, तो मुझे किसी ने कहा कि मेडिटेशन करो। उससे पहले मेरा ये रुख था मेडिटेशन से क्या होता है, ऐसा क्या, मतलब आई वाज वन ऑफ दोस पीपल। सो आई ट्राइड टू डू दैट, बट व्हेन आई गो इनसाइड इन मेडिटेशन, देयर इज टू मच ऑफ thought process that goes on in my mind, all the things that I don't want to think about, I I start know, I know. thinking about that. It is good, let it come out. अब जब झाड़ू लगाते हैं, कारपेट के नीचे बहुत सी डस्ट जमी हुई होती है, तब डस्ट उठता है तो ये नहीं सोचते अरे झाड़ू लगाने से डस्ट आ गया, तो वो था पहले। तो हमें यही करना चाहिए। जो इतना तूफान उठता है, when you get all these thoughts, disconnected thoughts, it is a way of stress release. So we must accept that. But if you will see, if you continue few minutes like that, the thoughts will come and then they'll subside. And the moment comes, even few minutes in that, what, 20, 30 minutes meditation you do, where your mind is absolutely still. You know, when the mind becomes so still, but this comes with practice. That's right. So in the beginning, that's why I would say use your breath, do some pranayama. If you do pranayama and sit for meditation, your mind will be much quieter. और अच्छे से एक्सरसाइज करो, पूरा दौड़ लगा के 1 किलोमीटर दौड़ लगा के आके बैठ जाना after a long run or some physical exercise, when your body is little bit exhausted, at that time also your mind becomes much quieter, much easier. Then third thing is, if you are too full, then you cannot meditate. For meditation, you should be a little bit hungry, not too much hungry, just a little hungry. That will also help you. Then what you can take many support for this, you know, play little music or flow of water for 3-4 minutes, listening to it, and then you can just let go. Many people think meditation is concentration. माने मन को एक जगह टिकाओ, जबरदस्त इधर उधर मत जाने दो। ये गलत है। मेडिटेशन माने जस्ट लेट गो। मन को जहां जाना चाहे उसको आप जाने दोगे तो भाई ये पूरा ध्यान जो है ना कश्मीर से निकला है। आपको पता है कश्मीरी शैविज्म में विज्ञान भैरव तंत्र करके वो पूरा, मैं यही सब जगह अभी उस पर व्याख्या करता हूँ। वहां शंकर जी ने, कश्मीर में जो वेल्थ है लोगों को पता ही नहीं है। जी जी सिर्फ जी। टूरिज्म प्लेस नहीं है उसमें, कश्मीरी शैविज्म। ये दो चीज तो है बहुत सुंदर। एक तो शिव सूत्र, मैं सबसे पहले जब मैं 22 साल के थे, हम शिव सूत्र पर हमने व्याख्या शुरू करी। वो भी कहाँ, दक्षिण में, जहां लोगों ने सुना भी नहीं था उसके बारे में। देन ये विज्ञान भैरव जो है उसमें शिवजी इतने सारे टेक्निक बताते हैं, 112, जाके आपका मन खाली हो जाए, शांत हो जाए। तो आप कभी टाइम लेके 3 दिन का मैं कराता हूँ, ये लोगों को भी दुनिया भर सबको कराया। वो उसमें क्या है, कश्मीरी शैविज्म में इट इज ऑल, विज्ञान भैरव तंत्र इज ऑल केप्ट लाइक ए फॉर्मूला। चाबी से खोलना पड़ता है उसको। इफ यू जस्ट रीड इट समझ में नहीं आता, बट इफ यू मेडिटेट then you read that Vigyan Bhairav, you understand that so thoroughly well. And these techniques are useful for mankind. अब वो तनाव से दूर हो सकते, we can get rid of our stress, we can get rid of our anxiety. आजकल देखो कितना एंजाइटी है लोगों को। जी जी। ये सब एंजाइटी से बाहर आने के लिए ये मेडिटेशन इज द वे। हमारे गुरुदेव, थैंक यू फॉर दिस। इसी एक्टर्स की किसी भी जगह भाव भंगिमा, इमोशंस जो हैं वो 9 इमोशन, 9 रस बोलते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली एंगर इज द वर्स्ट
emotion that a person can have. Because मुझे लगता है as an actor मुझे complete anger मेरे से नहीं होता है, because it exhausts me. If you see any of my movies, if I have to be totally angry, it's not there. I'm very good with righteous anger. I'm very good with anger which has an element of hurt. I want to ask you, do you get angry? You are now talking about my weakness. No, that's not my intent. No, Sometimes I'm telling you, it is correct. You know, I don't, I can count on my fingers how many times I got angry really, but my anger doesn't stay. It just comes in few seconds, it goes away. So nobody believes, even if I want to show anger, nobody believes I'm really angry. So that brings me to the But question. I say anger is not bad. I tell you, anger is also another weapon. We can use the anger as a weapon sparingly. Whenever we want, we can show it, and उससे काम तो बन जाता है. But whatever those fingertips anger moments were, what makes you angry? Because people like when they come to you, they are looking at their questions which you have an answer sometimes for. People want to feel better about themselves. People want to feel great about themselves. People don't, as you said, that nobody is bad. So when a person like you, who has millions of followers all over the world, says something which they feel, there is a sense of identification with somebody like you. So what is it that makes you slightly angry or upset, or what is it, that emotion? नहीं वो I would say, see, once I was taking care of the overlooking the project of distribution of food, blankets, everything in after tsunami. तो उस वक्त हम दौरा करने गए थे. I went to take a round, and then there was a volunteer who was waiting for a camera to come for one whole day without distributing it. तब मैंने गुस्सा करे उस पर, बोला तुम लोग यहाँ ठंड से लोग परेशान हैं, तुम कैमरा के लिए वेट कर रहा. तो मैंने उसको बोला यू स्टूपिड. जब मेरे को बहुत गुस्सा आता है, एक ही शब्द मेरे मुंह से निकलता है, यू स्टूपिड बोलता. बस इससे आगे कभी भी 65 साल में एक भी गाली मेरे मुंह से नहीं निकला है आज तक. तो मैंने ये मेरा बनावट है. मैंने इसके लिए कुछ आई हैव नॉट डन एनी स्पेशल एक्सरसाइज टू हैव कंट्रोल लाइक दैट. सो मैंने उसको कहा, उसका तो पॉइंट ये था कि कल कोई मेरे पर इल्जाम ना लगा दे तुमने दिया नहीं लोगों को. आई वांट प्रूफ फॉर माय डिस्ट्रीब्यूशन. उसकी बात तो सही थी, बट मुझे वो भाया नहीं, वो बात जची नहीं. और इस तरह से कोई बहुत गलती करते हैं लोग, कभी कभार मैं उनको गुस्सा दिखाता हूँ. साल में एक बार, वो दो 3 साल के बाद एक बार भी मैं दिखाता हूँ. मगर वो ज्यादा फिर मैं भी हंस पड़ता हूँ, वो भी हंस पड़ते हैं. तो इट डजंट स्टे. मैं इस इंटरव्यू से पहले सोच रहा था कि मैं ऐसी कोई ऐसे एक और उसमें ऐसा ये भी है, जब कोई बहुत हिपोक्रेसी करते हैं, झूठ बोलते, बहुत हिपोक्रेट्स करते हैं, बार बार समझाने पर भी नहीं, तब भी मैं गुस्सा करता हूँ, उन पर दिखाता हूँ. मगर वो जो है, मगर वो संभल भी जाते, सुधर भी जाते हैं लोग. इसलिए मैं कहता हूँ गुस्सा कभी कभी जरूरत भी है, मगर आप खुद गुस्से में आ जाओ ये नहीं ठीक है. गुस्सा दिखाना बहुत आवश्यक है. जैसे माँ बच्चों को गुस्सा दिखाती है, मगर पड़ोसी के साथ जब झगड़ा करती है तो उसका पूरा बदन जलने लगता है. मुझे ऐसा कभी नहीं होता. तो दूसरी तरह की गुस्से. Even I don't get angry.